constitutional amendment bill that undermine the core values of parliamentary democracy and federalism are being introduced in the subterfuge at the end of the session, leaving no scope for meaningful debate or scrutiny. Over the last 11 years, we have witnessed the blatant misuse of parliamentary majority to arm the autonomous agencies like ED, IT, CBI with draconian powers to target opposition leaders. Now, these new bills are set to become instruments in the hands of ruling party to further undermine and destabilize democratically elected governments in the states. In Parliament, we have seen a growing trend of stifling opposition voices. We are repeatedly denied the opportunity to raise matters of vital public concerns in the House. Parliament has been reduced to a tool for advancing the ruling party's ideology, with several important bills being passed in din and without proper deliberation. Such actions erode the Parliament's role as an impartial and effective legislative forum, diminish the public trust, and favor the Treasury benches at the expense of equitable debate. To resist and decisively act against these transgressions in Parliament, the nation needs an exemplary, impartial justice like Sri B. Sudarshan Reddy as the Vice President of India. His nomination represents our collective resolve to defend and uphold the democratic ideals and define India. Sri Reddy's life and work reflect the spirit of our Constitution, a commitment to fairness, compassion, and the empowerment of every citizen. These principles will guide his leadership as a Vice President and Chairman of the Rajya Sabha, ensuring that the House operates as a true basin of a democratic discourse. We, the opposition parties, stand united in our support for Sri Reddy. We are confident that his wisdom, integrity, and dedication will inspire and guide our nation toward a future rooted in justice and unity. We call upon every member of Parliament to join us in this historic endeavor to protect and preserve the values that make our democracy vibrant and resilient. आखिर में मैं चंद बातें भी हिंदी में कहना चाहूँगा। पिछले 11 सालों में विपक्ष के प्रति सत्ता पक्ष भारी भेदभाव कर रहा है। सत्ता पक्ष खुद संसदीय कार्यों में बाधा डालने का काम करता है। बहुमत का दुरुपयोग कर जनविरोधी कानून पारित करने का काम तब भी जारी है जबकि ये अल्पमत की सरकार है। इनको बहुमत
पार्लियामेंट में नहीं है, फिर भी वो इतने जोर से काम कर रहे हैं कि सबके अधिकार छीनने का और सबको दबाने का, डराने का ऐसे कानून वो ला रहे हैं। और इस मानसून सत्र में भी पूरे देश ने देखा है कि कैसे मोदी सरकार ने बिना विपक्ष की भागीदारी ने मनमाने तरीके से जल्दबाजी में बिलों को पारित किया है। इसमें सभापति की भूमिका भी काफी अहम रखती है। विपक्षी सांसदों को बोलने न देना, उन्हें बिना कारण निलंबित कर देना भारतीय संसद के लिए काला अध्याय साबित हुआ है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जमाने में से जो शानदार परंपरा है, ये राधाकृष्णन नहीं, हमारे जो पहले के डॉक्टर राधाकृष्णन थे, राज्यसभा में स्थापित हुई थी और विपक्ष को वाजिब सम्मान मिला, वे सारी परंपराएं अब खंडित हो रही है। इसीलिए विपक्षी दलों ने मिलकर तय किया है कि हम ऐसे पूर्व न्यायाधीश को अपना उम्मीदवार बनाए जिनका पूरा जीवन संवैधानिक परंपराओं, मान्यताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा होगा। और जॉइंट अपोजिशन की तरफ से हम सबने पूर्व जस्टिस की वी सुदर्शन रेड्डी जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं, सभी अपोजिशन पार्टी के लोग एकजुट होकर आपका नाम प्रस्तावित किया और सभी ने माना ये बहुत बड़ा साधन हम अपोजिशन पार्टी की तरफ से ये किया है, ऐसा कहने में कोई गलती नहीं है। इस मौके पर मैं दोनों सदनों के सभी सांसदों से ये अपील करना चाहूँगा कि संविधान, संसद और लोकतंत्र की उच्चतम मर्यादाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए आप सभी सुदर्शन रेड्डी जी को समर्थन देकर निर्वाचित करें, ये मेरा आपसे अपील है। मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी मीटिंग जरा समय बदलते गया, बदलते हुए समय को आपने बहुत रिस्पॉन्ड किया और हम सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इसीलिए कल भी आपको आना होगा, क्योंकि कल नॉमिनेशन भरना है और सभी लोग अपना सिग्नेचर भी करना है। तो कृपया सभी लोग अटेंड होकर सिग्नेचर करके नॉमिनेशन के वक्त भी हम ये दिखाए कि हम सभी लोग यूनाइटेड है और यूनाइटेडली फाइट कर रहे हैं, ये हमको दिखाना भी है। इतना ही कह के मैं अपने 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir. Now I'd like to request Shri Sharad Pawar ji, Senior Leader of NCP, to address the gathering. जिनके विचार अभी हमने सुने, श्री खड़गे जी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, हमारे साथी अन्य राजनीतिक पार्टी के सभी नेतागण और लोकसभा, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा,
इस चुनाव में विपक्ष की एकता और हम सब लोगों ने मिलकर जो तय किया है, इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सुदर्शन रेड्डी जी, इनका चयन किया गया। इससे पहले खड़गे जी ने सभी राजनीतिक दल के नेता लोगों से सुसंवाद साधा, बातें की। 1, 2, 3 मीटिंग हो गई, अलग अलग सुझाव आ गए, मगर सब साथियों ने ये तय किया कि कुछ भी हो, हम मिलकर एक ही कैंडिडेट तय करेंगे और विपक्ष की एकता देशवासियों को दिखाएंगे। और मुझे खुशी है खड़गे जी ने सभी साथियों के साथ बात करके आज हम रेड्डी जी के नाम पर एक हो गए हैं। ये चुनाव है, इस चुनाव में क्या नंबर है इसका अंदाजा सभी लोगों को है। इसकी चिंता हम लोगों के मन में बिल्कुल नहीं है, मगर ये चुनाव एक प्रिंसिपल का इशू है। आज जिन लोगों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, उनका अधिकार है, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, मगर मुझे चिंता ये है कि आजकल दिन ब दिन ऐसे लोगों को ये सबक खास तौर पर न्याय देने जाने की कोशिश की जाती है। ये बात एक तरह की चिंताजनक है। मेरे स्टेट से इसी हफ्ते में एक हाईकोर्ट जज का चुनाव किया। ये हाईकोर्ट जज इनका सिलेक्शन करने का अधिकार गवर्नमेंट का हो, मगर जो हाईकोर्ट जज जिनका चुनाव जिनका स्वीकार किया गया, वह हाईकोर्ट जज 1 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन आज हाईकोर्ट का जज होता है। कल सुप्रीम कोर्ट का भी जज बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। ऐसे कई बातें कह सकते हैं। एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ रेड्डी साहब का जब उन्होंने जुडिशरी में काम किया, इसका सब कारोबार अब देखिए। इनके कई जजमेंट ऐसे हैं कि जो गरीबों की हितों की रक्षा कर रहे, सिक्योरिटी के बारे में नॉन कॉम्प्रोमाइज अप्रोच दे रहे, और ऐसी स्थिति और ऐसी व्यक्ति आज विपक्ष में देश के सामने आई है, इसकी मुझे खुशी है। और ये चुनाव में जो हो जाएगा, मगर हम ये साफ बता सकते हैं कि हमारा प्रत्याशी देश के सभी विपक्ष के लोगों ने जिनका चयन किया, वो प्रत्याशी इस देश की फार्मेसी डेमोक्रेसी और न्याय संस्था इसके बारे में कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसीलिए उन्हें बाहरी हितों से जो कोई हमारी ताकत है, वो पूरी ताकत से हम चुनकर देंगे और देश को एक नया रास्ता दिखाएंगे। इतना ही मैं कहता हूँ और उनको शुभकामना देके आपकी इजाज़त देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
आदरणीय सोनिया जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय खड़गे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल जी, हमारे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार माननीय सुदर्शन रेड्डी साहब, मैडम शताब्दी रॉय जी, त्रिची शिवाजी, संजय राउत जी, प्रेम गुप्ता जी, जॉन बिटराज जी, सरफराज अहमद साहब, केसी वेणुगोपाल जी और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सम्मानित सदस्य। मैं सबसे पहले तो अपने उम्मीदवार का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में और वहाँ से रिटायर होने के बाद सामाजिक सेवा में, जन सेवा में जो आप काम करते रहें लगातार, उससे बहुत से लोग परिचित होंगे। हम बहुत दिनों से, कई वर्षों से देश के लोग और राज्यसभा के सदस्य खास तौर से उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति से निष्पक्ष संचालन की, इस कार्यवाही की उम्मीद करते रहे, लेकिन उसके अभाव में अब ये बहुत प्रासंगिक है कि कोई ऐसा व्यक्ति उस पद पर पहुंचे जिसका पिछला और आज तक का सारा जीवन निष्पक्ष और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहा। इसलिए भी जरूरी है कि संपूर्ण विपक्ष ही नहीं बल्कि आपके संबंध अगर हों किसी ऐसे व्यक्ति से जो उधर के हों, जिनकी अंतरात्मा अभी कुछ जागृत हो सकती हो, उनको भी कहने का, मनाने की कोशिश करें कि इस पद पर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए एक ठीक उम्मीदवार के रूप में रेड्डी साहब निर्वाचित हों। मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और विपक्ष के संपूर्ण नेताओं को, सभी नेताओं को, कि अच्छे मन से एक मत होकर सुदर्शन रेड्डी साहब के नाम का प्रस्ताव। कल नॉमिनेशन होना है, 9 सितंबर को चुनाव है, तब तक जितना जोड़ सकें जोड़ने का कोशिश करें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Now I'd like to request Madam Shatabdi Roy from TMC to address the gathering. নমস্কার, আমি আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জির তরফ থেকে আছি এবং আমাদের এমপিরাও আছেন, যারা सुदर्शन रेड्डी जी के शुभकामना जनाते एसेছি। हम लोग ये चाहते हैं सिर्फ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नहीं, पूरा अपोजिशन आपके साथ है। आप जीत कर आइए, जिंदगी भर जो न्याय किया है यहाँ पे भी न्याय दिखाइए, क्योंकि कुर्सी में बैठने के बाद अपोजिशन को इक्वली चांस दे, जो उनका बात रख सकते, उसका ओपिनियन रख सकते। ये आज भी हम लोग प्रूफ करेंगे डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है। हम लोग ये प्रूफ करेंगे संविधान के साथ हम लोग थे, हम लोग हैं, हम लोग आगे भी रहेंगे। सर आप जीत कर रहिए, वी आर वेटिंग फॉर यू सर। थैंक यू। Thank you, ma'am. Now I'd like to request Sri Tiruchi Shivaji, Senior Leader of DMK, to address the gathering. Madam Sonia Gandhi ji, Leader of Opposition in the Rajya Sabha, Honorable Mallikarjun Kharge ji, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Honorable Rahul Gandhi ji, leaders of various political parties and all the members of parliament,
belonging to the opposition parties in the Parliament of India. Good evening to all of you. This introductory meeting of our Vice Presidential candidate, Justice Sudarshan Reddy, is a remarkable day. At the outset, I would like to convey here the warmest greetings extended by the DMK leader and the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, wishing him a great success and honoring him as the eminent jurist who is in very much need to be in the chair of the Vice President. I take the privilege of calling Sudarshan Reddy Garu, the Justice, as Sir, because you are going to be our chairman. In the Rajya Sabha, we call the chairman as Sir, and now I assume that you are the Vice President and you are the chairman of the Rajya Sabha. Sir, your introductory meeting starts in the historical Central Hall, where the Constituent Assembly sat and debated for 3 long years, and where the Constitution was adopted, which has withstood the test of time for more than 75 years. This is the time India, the democracy is in peril. The Constitution is facing too much of challenges. So we repose our confidence, Justice. You always uphold the spirit of the Constitution, and we have chosen you as a candidate with the hope that democracy and the spirit of the Constitution will be restored in our nation. All the opposition parties have come together here. This is a very rare event, and this will be a starting point that India is going to have a great change. What is going on today is very much alarming. Many things cannot be shared in a short period of time here. After a long time, I heard the leader of opposition, Rajya Sabha, Honorable Mallikarjun Kharge, delivering a speech without his mic being disconnected. This is what is happening in the Parliament. We expect a Vice President who is going to be the chairman of the Rajya Sabha, who will be impartial, who will uphold the spirit of the Constitution and will take and prove again that India is the largest democracy in the world. So this is only an introductory meeting. I always speak with positive note. Soon we will celebrate your success as Vice President in the same Central Hall. I extend my wishes again on behalf of our leader, Mr. M.K. Stalin. Sir, you are going to win and you are going to be the Vice President and the Chairman of the Rajya Sabha. Thank you very much. थैंक यू तिरुचि जी। मैं अभी अनुरोध करूंगा श्री संजय राउत जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के पार्टी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, मेरे सभी साथी, सभी मान्यवर, ये एक ऐतिहासिक लड़ाई की शुरुआत हमने इस सेंट्रल हॉल से की है। ये सिर्फ सिंबॉलिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सत्य, न्याय और संविधान की रक्षा करने की लड़ाई, और ये लड़ाई जीतने की और जिताने की जिम्मेदारी हम सब पर है। मैं इतना ही कहूँगा कि देश में एक परिवर्तन की आंधी आ रही है। यह आंधी बिहार से अब शुरू हुई है, दिल्ली तक पहुंची है, और राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बिहार से आज आप यहाँ पहुँच गए हैं और हमारी ताकत को आपने बढ़ाई है। मेरी पार्टी शिवसेना और मेरे पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने
इस लड़ाई को उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई नहीं है, ये एक देश की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। पूरा समर्थन दिया है। हमारे पास क्या है? हमारे पास अकड़े की बात नहीं है। जिसके पास सुदर्शन है उसकी जीत है। महाभारत में लड़ाई कौरव और पांडवों की हो गई। पांडवों की ताकत बहुत कम थी, लेकिन कौरव हार गए। पांडवों के पास सुदर्शन था और आज वो सुदर्शन हमारे पास है। सिर्फ हमें एक जिगर चाहिए लड़ने की। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, न्याय के लिए, संविधान के लिए एक मन से, जैसे प्रोफेसर साहब आपने कहा कि मन से और एक मत से हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। और पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आज जो हत्या हो रही है लोकतंत्र की, हम उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद। बहुत Pawar ji, distinguished leaders, my friends. As my friend Mr. K.C. Venugopal said, this is not a symbolical battle, this is an ideological war. In an era when democracy faces huge threat from those who have to protect it, when our cherished institutions are under siege, federalism trampled upon, even when voters list getting tailored, an urgent need to have clarity and restore sanity, and the candidature of Justice Sudarshan Reddy is precisely for this. We have seen how the second highest constitutional office of this country has been dealt with by this government. A person literally humiliated and made to resign. As a journalist, I have been seeing this house, the parliament, for last 35 years. So before becoming the member of parliament, I had seen the house from the above and now from below. I had seen many vice presidents presiding over the Rajya Sabha with dignity and fairness. The standard of the parliamentary discourse has plummeted, and I feel that the candidature of Justice P. Sudarshan Reddy stands as a powerful beacon to restore democratic values. Along with my left colleagues, I fully support the candidature and exhort my friends to support him fully so that he becomes the Vice President and Chairman of Rajya Sabha. Thank you. थैंक यू जॉन ब्रिटा जी। मैं अभी अनुरोध करता हूं श्री प्रेमचंद गुप्ता जी, आरजेडी के सीनियर लीडर, वो अपनी बातें। परम आदरणीय सोनिया जी, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय खड़गे साहब, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी, मंच पर बैठे मेरे सभी सीनियर साथीगण, लोकसभा और राज्यसभा से सभी माननीय सांसदगण, मंच पर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए माननीय श्री सुदर्शन रेड्डी साहब को इनका हम स्वागत करने के लिए इनको एक यूनाइटेड फ्रंट ने, सभी पार्टीज के लीडर्स ने मिलकर इनको चुना है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए ये हमारे कैंडिडेट होंगे। तो साथियों, मैं मेरी पार्टी और माननीय लालू प्रसाद जी की तरफ से सुदर्शन रेड्डी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अश्योर करता हूं कि हमारी पार्टी हर तरफ से इनके लिए एकजुट होकर फाइट करेगी। और यही मेरे को उम्मीद है कि सभी मेरे साथीगण इसमें, लोकसभा के, राज्यसभा के सभी साथीगण, जिसका जो भी कॉन्टैक्ट जहाँ पर भी है, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज में हो या रूलिंग पार्टी में हो,
संविधान की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि किसी तरह हम इनको जितवाएं और संविधान की रक्षा करें। जिस प्रकार से पिछले 11 साल में संविधान के ऊपर में अटैक किया गया, अब जैसे बिहार में SIR का जो शुरुआत की 1 महीने पहले शुरुआत की, आप बताइए कि 8 करोड़ 9 करोड़ वोटर्स की काउंटिंग और उनका डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से ये 1 महीने के अंदर पूरा हो सकता है। बिहार से हमारे भाई बहन बहुत से करोड़ों की संख्या में पूरे देश में दुनिया में फैले हुए हैं, कैसे वो लोग जाएंगे और किस प्रकार अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। माननीय राहुल जी को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक इनिशिएट करके एक तेजस्वी जी के साथ मिलकर इन्होंने जो एक मुहिम बिहार में छेड़ा है, ये मैं सोचता हूं कि ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। ये इतना आसानी से काबू आने वाला सिस्टम नहीं है साथियों। आपने तो देखा है पिछले 11 साल में जो भी कुछ हुआ है, तो इसको हम यूनाइटेड रूप में इसको फाइट करेंगे तो हम अवश्य कामयाब होंगे। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि सुदर्शन रेड्डी साहब को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनेंगे और बहुमत से इनको जिताएंगे और संविधान की इनसे रक्षा होगी, इसकी हमें सब लोगों को उम्मीद है। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। शुक्रिया गुप्ता जी। मैं अब आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सम्मानित मंच और सभी माननीय सांसदगण, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने और पार्टी ने तय किया है कि विपक्ष ने जो उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी के रूप में तय किया है, उसका हम लोग पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। और जब हम लोग आज उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तय कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो संसद में एक ऐसा बिल पास किया जा रहा है जिसमें पार्टियों को तोड़ने, सरकारों को गिराने, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजने और विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में डाल के इस्तीफा लेने का बिल पास किया जा रहा है। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक चेयरमैन का भुक्तभोगी होने का सवाल है, तो मैं 11 महीने तक सस्पेंड रहा हूँ इसी सदन के बाहर। कई दिनों तक हम लोगों ने धरना दिया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसा कोई व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठे जो हम लोगों को बोलने का मौका दे, सस्पेंड करके और मार्शल से बाहर न फिकवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई। नाउ I'd like to request Sri Rahul Gandhi ji, leader of opposition in Lok Sabha, to address the gathering. जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, शरद पवार जी, राम गोपाल यादव जी, शताब्दी रॉय जी, तिरुचि शिवा जी, संजय राउत जी, PC गुप्ता जी, मोहम्मद बशीर जी, संजय सिंह जी, leaders of the India Alliance and all fellow members of Parliament, I'd like to welcome all of you here. आपका सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। There is a war going on, fight going on between those that are attacking the Constitution and those that are defending the Constitution. It's clear cut now. एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लोग हैं और वो इस कमरे में बैठे हैं,
और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करने वाले लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी हैं. I was sitting here just now and I was thinking, what can I say about Sudarshan Reddy ji? And there are quite a few things that can be said. Decades of judicial and legal experience, champion of constitutional values, and as is quite apparent, popular along party lines. Every single party, opposition party, has unanimously supported Reddy. He worked on the Telangana caste census, helped in the Telangana caste census, helped craft a vision of social justice for Telangana. But as I was thinking what to say, I happened to look inside his pocket, sitting next to me. And inside his pocket, there was a Constitution of India. And so I was like, okay, now he is carrying the Constitution of India with him everywhere. Now, when we are making a judgment about political people, there are two things. Number one is, ideologically, is he on the correct path? And number two is he a astute person? Is he a sharp person? So I must have looked for 1 second. And after about 5 minutes, he said to me, you know, Rahul, I have been carrying the Constitution in my pocket for 52 years. And then I said, but why are you carrying this for 52 years? We have only started carrying it once the BJP has started attacking us, attacking the Constitution. It has become very important to us. We carry it with us, we defend it, it defends us. Why do you carry it? And he said, because you know, in any conversation that you have, legal conversation, the Constitution has the final answer. And so, he's an astute person, sharp person, observant person, and he's ideologically aligned person. There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, you know, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, you know, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, you know, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. There's also wonderful spark, which is, I can see,
there is a fire that is starting in Bihar. And you will see I'm inviting all the senior leaders to come and see this fire because it is catching fire. मतलब वो आग फैल रही है, उसको रोका नहीं जा सकता. वो सारों के मुंह में है. सारे लोग वहां पे बच्चे, मतलब 4 साल के बच्चे, वोट चोर चल रहा है. क्योंकि ये जो देश है इसकी आत्मा बात बहुत जल्दी समझ जाती है. एंड ये अब आग लगनी शुरू हो गई. इनकी थिंकिंग थी कि महाराष्ट्र चोरी कर लिया, हरियाणा चोरी कर लिया, बिहार चोरी कर लेंगे, बंगाल चोरी कर लेंगे, असम चोरी कर लेंगे. इनकी ये थिंकिंग थी. मगर अब लग रहा है कि बिहार से आग फैलेगी. तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप आइए देखिए बिहार में कैसी मतलब पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी स्टेट है. अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहां पे मतलब तूफान आ रहा है, शुरू हो गया है. तो हमारे लिए भी अच्छा टाइम है, क्योंकि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट it is the duty of the opposition now and duty of all the senior leaders sitting here, Sharad Pawar ji, Kharge ji, Yadav ji, to provide a alternative vision, alternative idea of India than the one they are providing. This is a big responsibility. It is not the same responsibility we had 10 years ago or 15 years ago, because the system was in place. Now the system's gone. And we had the wisdom here on this table. Senior most people representing each state, each language, each culture of this country. And we should be very proud of the leadership capability that we have. And now we are backing Sudarshan Reddy ji. I'm confident that he will fight an extremely solid election and the nation will see the message that we are intending to deliver. Thank you and congratulations.